اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عالم فقر کا امتیاز۔ حسام الدین زنجانی فقراء کی خدمت میں پہنچنے اور ان سے صحبت رکھنے سے پیشتر بہت بڑا مناظر تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اور بیٹھتا بحث و مناظرہ میں بڑی کوشش کرتا۔ وہ خوب مناظرہ کرتا اور اچھا بولتا، لیکن جب وہ درویشوں کا ہم مجلس بنا تو بحث و مباحثہ کی طرف سے اس کا دل سرد ہو گیا۔ عشق کو دوسری عشق کے سوا کوئی نہیں کاٹتا۔ جو شخص خدا کی ہم نشینی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اہل تصوف کی ہم نشینی کرے۔ احوال فقراء کی نسبت یہ اعمال ایک کھیل ہیں اور یہ عمر ضائع کرنے کے مترادف ہیں کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے۔ سورہ حدید۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور عاقل اور کامل ہو جاتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا نہیں، اور اگر وہ کھیلتا کودتا ہے تو انتہائی شرم کی وجہ سے چھپ کر ایسا کرتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھے نہیں۔ یہ علم، کہل و کال اور دنیا کی حوث و ہوا ہے، اور آدمی خاک ہے۔ جب مٹی ہوا سے ملتی ہے تو جس جگہ پہنچتی ہے آنکھوں کو خراب کرتی ہے، اور اس کے وجود سے تشویش اور اعتراض کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اب اگرچہ وہ خاک ہے، جو بات بھی وہ سنتا ہے روتا ہے، اس کے آنسو پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں۔ تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھو گے۔ سورہ مائدہ۔ خاک پر ہوا کی بجائے پانی ڈال دیا جائے تو کام اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بے شک جب خاک کو پانی ملتا ہے تو اس پر سبزہ، پھول، بنفشہ اور گل و گلزار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ راستہ فقر کا راستہ ہے کہ اس پر چل کر تو تمام آرزوؤں تک پہنچتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تو تمنا ہی رہا تھا اس راستہ سے تجھے پہنچتی ہے۔ لشکروں کو شکست دینا، دشمنوں پر فتح حاصل کرنا، ملکوں کو قابو میں کرنا، خلق کو مسخر کرنا، اپنوں پر تفوق پانا اور فصاحت و بلاغت، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، جب تو فقر کا راستہ اختیار کر لے تو یہ سب تجھے اسی راستہ سے ملتا ہے۔ کوئی شخص اس راستہ پر نہیں چلا جس نے شکایت کی ہو، برخلاف دوسرے راستوں کے جو شخص ان پر چلے اور انہوں نے کوشش کی تو 100,000 میں سے ایک کو مقصود حاصل ہوا، وہ بھی اس طرح نہیں کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو اور اسے چین آ جائے، اس لیے کہ ہر راستہ کے لیے جدا اسباب اور طریقے ہیں۔ ان اسباب کے راستہ کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوتا، اور وہ راستہ دور ہے اور مصیبت سے پر ہے اور ممانعت سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسباب مقصود سے دور ہو جائیں۔ اب جب تو عالم فقر میں آ گیا اور اس میں کام کیا تو خداوند تعالیٰ نے تجھے ممالک اور دنیایں بخش دیں جو تیرے وہم و گمان میں بنا آئی ہوں گی، اور جس چیز کی تو نے پہلے تمنا کی اور جسے تو نے پہلے چاہا اس سے تو شرمندہ ہوا کہ میں نے ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جو مجھے مل گئی اس حقیر چیز کی کیوں تمنا کی۔ لیکن خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اس سے منزہ ہو گیا اور تو نہیں چاہتا اور تو بیزار ہے، مگر اس وقت تیرے دل میں اس کا خیال گزرا تھا اور تو نے اسے ہماری خاطر ترک کر دیا، تو ہمارا کرم بے انتہا ہے۔ بے شک ہم تجھے وہ بھی میسر کرائیں گے۔ چنانچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقبولیت اور شہرت سے پہلے عرب کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو خواہش کی کہ مجھے بھی ایسی فصاحت و بلاغت حاصل ہو۔ جب آپ پر عالم غیب منکشف ہو گیا اور آپ مست حق ہو گئے تو اس طلب اور تمنا کی طرف سے آپ کا دل سرد ہو گیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جس فصاحت و بلاغت کی تو تمنا کرتا ہے وہ میں نے تجھے دی۔ کہا یا الہی وہ میرے کس کام آئے گی؟ میں اس سے باز آیا، میں وہ نہیں چاہتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کھا، یہ بھی ہے اور فراغت بھی قائم ہے، اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو وہ سخن دیا کہ تمام زمانہ نے آپ کے وقت سے لے کر آج تک کتنی جلدیں اس سخن کی شرح میں تیار کی اور تیار کر رہا ہے، اور ابھی اس کے ادراک سے دنیا قاصر ہے۔
और खुदावंद ताला ने फरमाया कि साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कमजोरी, खौफ और हासिदों की वजह से तेरा नाम छुपकर कान में लेते हैं। मैं तेरी बुजुर्गी को इस हद तक नशर करूंगा कि दुनिया भर की विलायतों में बुलंद मीनारों पर से हर रोज 5 मरतबा लतीफ, खुशलहान और बुलंद आवाज से मशरिक और मगरिब में इसकी शोहरत होगी। अब जिस किसी ने अपने आप को इस रास्ता में डाल दिया उसे दीन और दुनिया के तमाम मकासद हासिल हो गए, और किसी ने इस रास्ता की शिकायत नहीं की। हमारा सुखन तमाम का तमाम नकद है और दूसरों के सुखन नकल है, और ये नकल नकद की फरा है। नकद आदमी के पांव की तरह है और नकल ऐसी है कि लकड़ी का सांचा आदमी के पांव की शक्ल पर है। अब इस लकड़ी के पांव को उस असली पांव से उन्होंने चुराया है और इसका अंदाजा उन्होंने इससे किया है। अगर दुनिया में पांव ना होता तो इस सांचे को कैसे शनाख्त करते? बस बाज सुखन नकद है और बाज नकल है, और ये एक दूसरे की मानिंद है। तमीज करने वाला चाहिए जो नकद को नकल से पहचान सके, और तमीज ईमान है और कुफ्र बेतमीजी है। क्या तूने नहीं देखा कि फिरौन के जमाने में जब असाए मूसवी सामान बन गया और जादूगरों की लकड़ियां और रस्सियां सांप बन गईं, तो जिस शख्स को तमीज न थी उसने उन सब को यक रंग देखा और उनमें फर्क ना किया, और जो शख्स तमीज रखता था उसने जादू और हक के दरमियान तमीज कर ली और तमीज के जरिए मोमिन बन गया। बस हमने समझ लिया कि ईमान तमीज है। ये फिका, आखिर ये फिका असल में वही थी, लेकिन जब खलकत के इफ्कार और उसके हवास और तसर्रुफ की आमेज़श हो गई तो वो लुत्फ ना रहा, और इस घड़ी लताफत वही में से क्या बाकी रहा। ये इसी तरह है जैसे पानी जो नाली में शहर को रवां है, जहां उसका सरचश्मा है वहां ये कितना साफ और लतीफ है, और जब ये शहर के अंदर आता है और बागों, मोहल्लों, अहले शहर के मकानों के पास से गुजरता है तो इसमें खलकत अपने हाथ, चेहरा, पांव और दीगर अज़ा की गलाजत और कपड़ों, कालीनों की मैल, मोहल्लों के पेशाब और घोड़े खच्चरों की निजासत उसमें मिला देती है। जब ये पानी दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो तू देखता है कि अगरचे ये वही पानी है, ये बदस्तूर मिट्टी को कीचड़ बनाता है, प्यासे को सैराब करता है, जंगल को सरसब्ज बनाता है, लेकिन तमीज करने वाली आंख चाहिए। तुझे मालूम है कि इस पानी में जो लताफत पहले थी वो अब बाकी नहीं रही और इसमें बुरी चीजें मिल गई हैं। मोमिन साहिब कयास होता है, साहिब तमीज होता है, साहिब फतानो तो अक्ल होता है। बूढ़ा आदमी जो खेल में मशगूल हो तो अक्लमंद नहीं, खा वो उम्र में 100 साल का हो, अभी खाम है और लड़का है, और अगर लड़का है तो जब वो खेल में मशगूल नहीं, बूढ़ा है। यहां सन मोतबिर नहीं, ना सड़ने वाला पानी। गैरामन पानी वो होता है जो दुनिया की तमाम पलीदियों को पाक करता है और उस पर कोई चीज असर नहीं करती। वो इतना साफ और लतीफ होता है कि मैदा में जाकर मुजमहिल नहीं होता, ना वो खलतमल्त होता है और ना गंदा होता है, और वो आबे हयात है। एक शख्स ने नमाज में नारा मारा और रो दिया, उसकी नमाज बातिल हुई या नहीं? इसका जवाब तफसील से है। अगर उसका रोना इस वजह से था कि उसे एक दूसरा आलिम दिखाया गया जो बैरूने महसूसात था और वो अश्कबार हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि उसने क्या देखा, ऐसी चीज देखी जो नमाज की जिन्स से है और मुकम्मल नमाज हुई जो नमाज का मकसूद है। ऐसी नमाज सिर्फ दुरुस्त ही ना होगी बल्कि कामिल तर होगी। और अगर उसके बरक्स देखा, दुनिया की खातिर रोया या दुश्मन पर गालिब हुआ, उसकी अदावत की वजह से रोना आया, या किसी शख्स से हसद किया कि उसे इतने असबाब क्यों मुयस्सर हैं और मुझे मुयस्सर नहीं, उसकी नमाज अबतर, नाकिस और बातिल ठहरी। बस हमने समझ लिया कि ईमान तमीज है जो फर्क करता है हक और बातिल में और नकद और नकल में। जिस किसी को तमीज नहीं वो महरूम है। अब मैं जो बात कह रहा हूं, सुनने वालों में से जिस किसी को तमीज हो वो इससे फले फूलेगा, और जिसको तमीज नहीं है इसके लिए ये बात जाया हो गई।
یہ ایسے ہے کہ دو عقلمند اور قابل شخص جو شہر کے رہنے والے ہیں، شفقت کی بنا پر ایک دہقان کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے گواہی دینے جاتے ہیں، لیکن وہ دہقان اپنی جہالت سے کوئی بات ان دو کے خلاف کہہ دیتا ہے، جس سے گواہی کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا اور ان کی کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دہقان اپنا آپ گواہ ہے، لیکن جب سکر کی حالت مستولی ہو جاتی ہے تو مست آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کوئی تمیز کرنے والا موجود ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس سخن کا مستحق یا اس سخن کا اہل یہاں پر کوئی ہے یا نہیں، وہ لافزنی کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے دودھ سے کسی عورت کے پستان بہت بھر جائیں اور وہ درد کرنے لگے تو وہ محلہ بھر کے کتوں کے بچے اکٹھے کر کے دودھ ان کے آگے ڈال دیتی ہے۔ اس طرح سخن تمیز کرنے والے آدمی کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قیمتی موتی تو نے اس بچے کو دے دیا جو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ وہ بچہ جب اس جگہ سے آگے بڑھتا ہے تو لوگ ایک سیب اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ موتی اس سے ہتھیا لیتے ہیں، کیونکہ اس بچے کو اس کی تمیز نہیں۔ بس تمیز کے معنی بڑے ہیں۔ باجزید کو بچپن میں اس کے باپ نے مدرسہ میں بھیجا کہ وہ فقہ سیکھ لے۔ جب اسے مدرس کے سامنے لے گئے تو باجزید بولا، کیا یہ خدا کی فقہ ہے؟ کہنے لگے یہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ بولا، میں خدا کی فقہ چاہتا ہوں۔ جب اسے نحوی کے پاس لے گئے تو وہ بولا، کیا خدا کی نحو ہے؟ جواب ملا، یہ سیبویہ کی نحو ہے۔ بولا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح اسے جہاں بھی لے گئے اس نے یوں ہی کہا۔ باپ اس سے عاجز آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ اسی طلب میں بغداد آیا۔ جنید کو دیکھتے ہی نعرہ مارا، کہا، یہ ہے خدا کی فقہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری کا بچہ اپنی ماں کو نہ پہچانے جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اور وہ عقل اور تمیز اس میں ودیت کی گئی ہے۔ پس ظاہریت کو چھوڑ دے۔ ایک شیخ تھا، وہ مریدوں کو اپنی خدمت میں دست بستہ کھڑا رکھتا۔ لوگوں نے کہا، اے شیخ، تو اس جماعت کو بٹھاتا کیوں نہیں؟ یہ درویشوں کی راہ و رسم نہیں، یہ عادت عمرا اور ملوک کی ہے۔ بولا، نہیں، خاموش رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طریقہ کار کی تعظیم کریں تاکہ پھلے پھولیں۔ اگرچہ تعظیم دل سے ہے، پھر بھی ظاہر باطن کا عنوان ہے۔ عنوان کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ عنوان سے مکتوب کو سمجھ لیتے ہیں کہ مکتوب کس کے لیے ہے اور کس کے پاس ہے، اور عنوان سے کتاب کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باب اور کیا کیا فصلیں ہیں۔ ظاہراً تعظیم یعنی سر جھکانے اور پاؤں پر کھڑے رہنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں خدا کی کتنی تعظیم ہے اور وہ کس طرح تعظیم کرتا ہے، اور اگر وہ ظاہراً تعظیم نہیں کرتا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا باطن بے باک ہے اور وہ مردان حق کی تعظیم نہیں کرتا۔ سوال کرنے کے لیے زبان ضروری نہیں۔ جوہر خادم سلطان نے سوال کیا کہ زندگی میں ایک آدمی کو 5 بار تلقین کرتے ہیں، وہ نہ بات کو سمجھتا ہے اور نہ ضبط کرتا ہے، مرنے کے بعد اس سے کیا سوال کریں گے؟ کیونکہ وہ یاد کیے ہوئے سوال اپنی موت کے بعد بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا، جب یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے تو ضرور صاف اور شائستہ ہو جاتا ہے، خاص کر ناموختہ سوال سے۔ اس گھڑی سے لے کر اب تک تو میرے کلمات سنتا ہے، ان میں سے بعض کلمات کو تو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس قسم کے کلمات تو سن چکا ہے اور قبول کر چکا ہے۔ بعض کلمات کو تو نیم قبول کرتا ہے اور تو بعض پر توقف کرتا ہے۔ تیرے اس اندرونی رد و قبول اور بحث کو کوئی نہیں سنتا، اسے معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں۔ ہر چند کے تو کان رکھتا ہے، اندر سے تیرے کان میں کوئی آواز نہیں آتی۔ اگر تو اپنے اندر تلاش کرے تو کسی بات کرنے والے کو اپنے اندر نہیں پائے گا۔ زیارت کے لیے تیرا یہ آنا عین سوال ہے، بغیر منہ اور زبان کے کہ ہمیں راہ دکھاؤ اور ہماری راہ کو روشن سے روشن تر کرو۔ ہم خاموش رہیں یا باتیں کریں، ہمارا آپ کے پاس بیٹھنا ہی آپ کے سوال ہائے پنہا کا جواب ہے۔ یہاں سے اٹھ کر تو پھر بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے، تو تیرا اس کے حضور میں جانا ہی بادشاہ سے سوال و جواب ہے، اور بادشاہ کا اپنے غلاموں کے سامنے سارا دن خاموش رہنا سوال ہے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور دیکھتے ہیں۔
अगर बातिन में किसी की नजर काज हो तो उसका जवाब उसे टेढ़ा ही मिलता है। वो खुद समझता है कि उसे अंदर से जवाब सच्चा नहीं मिल रहा। ये ऐसा ही है कि किसी की जुबान में लुकनत हो तो वो ख्वाह कितना ही चाहे कि हर बात ठीक तरह से करे, मगर नहीं कर सकता। जरगर सोने को पत्थर से पीटता है तो ये सवाल है। सोना जवाब देता है कि मैं खालिस हूं या मुझ में अमेज़श है। तर्जुमाए शेर। जब तू साफ हो तो कुठाली तुझे खुद बताएगी कि तू खालिस सोना है या सोने में तांबा मिला हुआ है। भूख तबीयत की तरफ से सवाल है कि जिस्म के घर में खलल है। ईंट दे, मट्टी दे। खाना जवाब है कि पकड़। न खाना जवाब है कि अभी हाजत नहीं। वो मोहरा अभी खुश्क नहीं हुआ। उस मोहरा के सर को पीटना नहीं चाहिए। तबीब आता है, नबज पकड़ता है। वो सवाल है। राग का हिलना जवाब है। करोरा पर नजर डालना सवाल है। और लाफ जनी के बगैर बात करना जवाब है। दाना जमीन में डालना सवाल है कि मुझे फला फल चाहिए। दरख्त का उगना जवाब है जुबान की लाफ जनी के बगैर। चूंकि जवाब बगैर हर्फ के है, सवाल भी बेहरफ ही होना चाहिए। अब दाना बहुत पुराना हो तो दरख्त पैदा नहीं होता। ये भी सवाल जवाब है। क्या तू नहीं समझा कि जवाब ना देना जवाब है। एक बादशाह ने किसी का रुक्का 3 मरतबा पढ़ा, जवाब ना लिखा। उसने शिकायत की कि मैंने 3 मरतबा खिदमत में अर्ज की है, आप उसे कबूल फरमाएं या रद्द फरमाएं। बादशाह ने रुका की पुश्त पर लिखा, क्या तू नहीं समझा कि जवाब ना देना जवाब है। वह जवाबुल अहमक सुकूत और अहमक का जवाब खामोशी है। दरख्त का ना उगना तरके जवाब है। लाजमी तौर पर यह जवाब है। हर हरकत जो आदमी से सरजद होती है एक सवाल है, और उसके सामने खुशी या गम जो कुछ आता है वो जवाब है। अगर जवाब अच्छा सुने तो चाहिए कि शुक्र करे, और शुक्र ये होता है कि वैसा ही सवाल करे, इस सवाल पर जवाब मिले। और अगर जवाब बुरा सुने तो जल्द इस्तगफार करे और वैसा दूसरा सवाल न करे। जब हमारा अज़ाब आ पहुंचा तो उन्होंने तजर्रो और आजिज़ी से क्यों ना काम दिया? नहीं, बल्कि उनके दिल तो सख्त हो चुके थे। सूरह इनाम। यानी वो ना समझे कि जवाब उनके सवाल के मुताबिक है। शैतान ने उनके कुर्तूत खुशनुमा कर दिखाए। सूरह इनाम। यानी वो अपने सवाल को जवाब देखते हैं। वो कहते हैं ये जिस्त जवाब इस सवाल के लायक नहीं है, और वो नहीं जानते कि धुआं ईंधन से था ना कि आग से। ईंधन जितना ज्यादा खुश्क होगा धुआं उतना ही कम होगा। तूने एक बाग किसी बागबान के सुपुर्द किया, अब अगर उसमें अच्छी खुशबू ना आए तो इल्जाम बागबान पर है, बाग पर नहीं। कहा, मां को क्यों कत्ल किया? मैंने एक बात देखी थी जो उसके लायक न थी। कहा, उस बेगाने मर्द को कत्ल करना चाहिए था। बोला, क्या मैं हर रोज एक मर्द को कत्ल करता? अब जो कुछ पेश आए अपनी नफ्स की तदीब कर, ताकि हर रोज किसी से तुझे जंग न करनी पड़े। तू जो कहेगा वही सुनेगा। अगर वो कहें हर शय खुदा ही की जानिब से है। सूरह निसा। हम कहते हैं अपने नफ्स का अताब करना और एक दुनिया को रिहा करना भी खुदा ही की तरफ से है। उसकी मिसाल यह है कि एक शख्स जर्द आलू के दरख्त से फल गिराता है और खाता है। बाग का मालिक आ जाता है और मुतालिबा करता है। वो कहता है, तू खुदा से क्यों नहीं डरता कि चोरी कर रहा है? वो शख्स जवाब देता है, क्यों डरूं? फल खुदा का है और मैं जो खा रहा हूं खुदा का बंदा हूं, खुदा के माल से खा रहा हूं। बाग का मालिक दूसरों से कहता है, मुझे एक रस्सी ला दो ताकि मैं इसे जवाब दूं। वो उस शख्स को दरख्त से बांध देता है और मारता है ताकि उसे जवाब मालूम हो। वो फरियाद और आहुजारी करता है कि तू खुदा से क्यों नहीं डरता? बाग का मालिक कहता है, क्यों डरूं? तू खुदा का बंदा है और मैं तुझ बंदाए खुदा को खुदा की इस लकड़ी से पीटता हूं। खुलासा यह है कि इस दुनिया की मिसाल पहाड़ की सी है। तू अच्छा या बुरा जो कहेगा पहाड़ से वही सुनेगा। और अगर तू ख्याल करे कि मैंने अच्छी बात कही थी मगर पहाड़ ने बुरा जवाब दिया तो ये नामुमकिन है। हो नहीं सकता कि पहाड़ में बुलबुल चहके तो वहां से आवाज कव्वे की आए, या आदमी की आवाज या गधे की आवाज आए। अगर पहाड़ से गधे की आवाज आती है
तो यकीन कर कि तूने गधे की आवाज ही निकाली होगी। तर्जुमा शेर। जिस वक्त तू पहाड़ में आए तो आवाज को खुशुलहान रख। पहाड़ में खड़ा होकर गधे की तरह क्यों हींकता है? उस आसमान के गुंबद की सदा भी ऐसी अच्छी है जैसी कि तेरी आवाज है। तैसी से ज़ौक़ की अहमियत। हम पानी पर प्याले की तरह हैं। प्याले का पानी पर चलना प्याले के हुक्म से नहीं है, ये पानी के हुक्म से है। कहा ये आम है, लेकिन बास जानते हैं कि वो पानी पर है और बास नहीं जानते। फरमाया अगर आम होता तो उसकी तखसीस दुरुस्त ना होती कि मोमिन का कल्ब खुदा की 2 उंगलियों के दरमियान है। सूरह रहमान। और नेज़ फरमाया वो रहमान जिसने कुरान की तालीम दी, और नहीं कह सकते कि ये आम है, तमाम उलूम उसी ने सिखाए। कुरान की क्या तखसीस है? और इसी तरह जमीन और आसमान को पैदा किया। सूरह हूद। आसमान और जमीन की क्या तखसीस है? जब तमाम अशिया को अलल अमूम उसने पैदा किया तो बेशक पानी पर सब प्याले उसी की कुदरत और मशीयत से हैं, लेकिन ज़श्त चीजों को उससे मंसूब करें तो ये बेअदबी होती है। जैसा कि ए गौहर और बेआवाज और आवाजदार यादों के खालिक, ए आसमानों के खालिक और अकलों के खालिक। बस इस तखसीस का फायदा है अगरचे आम है, बस किसी चीज की तखसीस उस चीज को काटने पर दलालत करती है। प्याला पानी पर चलता है और पानी इसलिए ले जाता है कि सब लोग इस प्याला का नजारा करें, और पानी को पानी इस वजह से ले जाता है कि सब लोग तबन इससे गुरेज करते हैं और बाई से नंग कहते हैं, और पानी उन्हें गुरेज का काम करता है और गुरेज करने की ताकत देता है, और उनके दिल में डाल देता है कि ए खुदा इससे हमारा बूद ज्यादा कर, और इस पहले से ए खुदा इससे हमारा कुर्ब ज्यादा कर। अब वो शख्स जो आम देखता है कहता है कि तस्कीर के एतबार से दोनों ही पानी के मुसख्खर हैं। एक है जो जवाब देता है कि अगर तूने पानी पर प्याला के घूमने की खूबी, वस्फ और हुस्न को देखा होता तो तुझे इस सिफ्ते आम की परवाह न होती। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी के माशूक में गू और पलीदी भी शामिल होती है। आशिक इस बात को कभी खातिर में नहीं लाता कि मेरे माशूक में गंदगी और पलीदी भी है, और ये कि मेरा माशूक और पलीदी दोनों की जिसामत है, दोनों मकानी है, शश जहत के अंदर है, हादिस है और खाली है। इसके नजदीक कुछ मानी नहीं रखते। आम औसाफ में से ये उसमें हरगिज नहीं समाता। मिनल औसाफिल आमा, आम औसाफ में से ये उसमें हरगिज नहीं समाता, और जो शख्स उसे ये सिफ्ते आम याद दिलाता है उसे वो दुश्मन समझता है और अपना इबलीस ख्याल करता है। बस जब तुम में ये गुंजाइश है कि तू इस जेते आम में नजर करता है तो मेरे हुस्ने खास के नजारा का तू अहल नहीं है। इसे मनाजिरा करना मुनासिब नहीं, इसलिए कि हमारे मनाजरा में हुस्न मिला हुआ है, और हुस्न का इजहार उस पर करना जो उसका अहल ना हो जुल्म होता है। हिकमत ना अहल लोगों को ना दो, वरना हिकमत पर जुल्म करोगे। ना उसके लायक लोगों से हिकमत को रोको, वरना हिकमत पर जुल्म करोगे। ये इल्म नजर है, इल्म मुनाजिरा नहीं है। खिजा से फूल शगुफ्ता नहीं होते और फल नहीं पकते, क्योंकि ये मुनाजरा होता है, यानी मुखालफत खिजा से मुकाबला और मुकावमत करती है। और फूल की ये फितरत नहीं कि वो खिजा का मुकाबला करे। अगर आफताब की नजर अमल करे तो फूल मोतदिल हवा में बाहर आ जाता है, वरना वो किनारा कश रहता है और अपने असल के साथ ही रहता है। खिजा उससे कहती है कि अगर तू खुश्क शाख नहीं तो मेरे सामने बाहर आ। अगर वो मर्द हो तो कहता है तेरे सामने मैं एक खुश्क शाख हूं, मैं ना मर्द हूं, तू जो चाहे कह। तर्जुमा शेर। ऐ सादिकों के बादशाह, क्या तूने मुझ जैसा मुनाफिक देखा है? तेरे जिंदों के साथ मैं जिंदा हूं, तेरे मुर्दों के साथ मैं मुर्दा हूं। तू जो बहाउद्दीन है, एक कमरू बूढ़ी औरत जिसके मुंह में दांत ना हो, जिसका चेहरा सो समार की पीठ की तरह हो, जुरियों पर जुरियां पड़ी हों। अगर तुझसे कहे कि अगर तू जवान है और मर्द है तो अपनी मर्द में दिखा। ये घोड़ा है, ये माशूक है और ये मैदान। तू यही कहेगा कि माज़अल्लाह मैं मर्द नहीं हूं। अगर लोगों ने मुझे नौजवान
और मर्द मशहूर कर रखा है तो ये झूठ है। अगर तुम हमारा जोड़ा बनो तो इससे नामर्दी बेहतर है। एक बिच्छू डांग उठाए हुए ये कहता हुआ तेरे उज़ू पर से गुजरता है कि मैंने सुना है तू मर्द है, बड़ा हंसमुख है, जरा हंस कि मैं भी तेरी हंसी देखूं। तू उसके जवाब में यही कहेगा कि तुम्हारे आने के बाद हमें कोई हंसी नहीं आ सकती और ना कोई खुशी हासिल हो सकती है। लोगों ने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है। मेरी हंसी इस बात पर मौकूफ है कि तुम यहां से चले जाओ, दूर हो जाओ। कहा तूने आह की और मेरा ज़ौक जाता रहा। आह ना करता कि ज़ौक ना जाए। फरमाया कि कभी ऐसा भी होता है कि अगर आह ना करो तो ज़ौक चला जाता है। ये मुख्तलिफ मौके होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो यूं ना फरमाया जाता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े आह करने वाले और हलीम थे। अपनी किसी तात का इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी ज़ौक का इजहार है। और ये बात भी जो तू कहता है इसलिए कहता है कि ज़ौक आए। इसकी ये मिसाल है कि सोए हुए आदमी को आवाज देते हैं कि उठ बैठ, दिन चढ़ आया, काफिला रवाना हो रहा है। कहते हैं उसे आवाज ना दो कि वो ज़ौक में है, उसका ज़ौक जाता रहेगा। कहता है वो ज़ौक हलाकत है और ये ज़ौक हलाकत से मुखलसी है। कहते हैं उसे फिक्र में ना डाल क्योंकि ये आवाज फिक्र के माने है। कहता है इस आवाज से सोने वाले को फिक्र होता है, वरना उसे नींद की हालत में क्या फिक्र है। हाँ, जब नींद से बेदार होगा तो फिक्र करेगा। आवाज दो किस्म की होती है। अगर आवाज देने वाला इससे इल्म में बुलंद है तो ये आवाज ज्यादती फिक्र का बायस होगी, इसलिए कि इसे तंबीह करने वाला साहिब इल्म है और बेदार है। तो खुदा जब उसे ख्वाब गफलत से आगाह करता है, उसे अपने आलिम से आगाह करता है और उसे उस जगह खींचता है तो उसका फिक्र बुलंद होता है। बात यह थी कि उसने बुलंदी पर से आवाज दी थी, लेकिन अगर मामला उसके बरक्स हो यानी बेदार करने वाला अक्ल में उससे नीचे हो तो जब वो उसे बेदार करता है, बेदार होने वाले की नजर नीचे पड़ती है। चूंकि उसका बेदार कनुंदा असफल है, उसकी नजर भी असफल ही पड़ती है और उसका फिक्र आलिम सफली की राह लेता है। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।